اور رات کے سناٹے میں جب ریگستانی ہوا ریت کو ہلکا ہلکا اڑا رہی ہو اور مکہ کے خاموش پہاڑ اپنی پرانی عظمت کے ساتھ آسمان کی طرف تکتے ہوں، تب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تاریخ کا سب سے عجیب اور خوفناک واقعہ اسی مقدس سرزمین پر رونما ہونے والا ہے۔ مگر کہانی یہاں سے نہیں شروع ہوتی، کہانی اس دن سے شروع ہوتی ہے جب یمن کا حاکم ابرہہ غرور اور طاقت کے نشے میں ڈوبا ہوا اپنے خزانے کے درمیان بیٹھا سوچ رہا تھا کہ عرب کے لوگ خانہ کعبہ کی طرف کیوں جاتے ہیں، وہ میرے کلیسا کیوں نہیں آتے؟ خانہ کعبہ میں ایسی کیا چیز ہے؟ میں نے دنیا کی سب سے شاندار عبادت بنائی ہے، لیکن لوگ پھر بھی مکہ جاتے ہیں۔ یہ بات اس کے دل کو چیرتی تھی، اس کی رگوں میں آگ بھرتی تھی۔ ابرہہ کوئی عام حکمران نہیں تھا، وہ ایک ایسا شخص تھا جس سے طاقت پر ناقابل یقین اعتماد تھا۔ یمن میں اس نے کلیسا نامی ایک شاندار چرچ تعمیر کیا تھا، بادشاہوں کے محلات بھی اس کے سامنے ماند پڑ جائیں، چمکتے پتھر، رنگین شیشے، قیمتی لکڑی، خوشبوؤں سے مہکتا ہوا اس کا حال۔ مگر جتنا اس کا چرچ عظیم تھا، اتنی ہی اس کے دل میں خانہ خدا کے خلاف حسد کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ عرب کے لوگ میرے کلیسا کو اپنی عبادت کا مرکز کیوں نہیں بناتے؟ آخر ایسی کیا بات ہے اس چھوٹے سے چبوترے میں جسے وہ خانہ کعبہ کہتے ہیں؟ پھر ایک دن وہ واقعہ ہوا جس نے ابرہہ کے اندر آگ بھڑک دی اور اس کے اندر آگ کے شعلے پلکنے لگے۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ عرب کا ایک نوجوان ابرہہ کی ان باتوں کو سن کے تنگ آ گیا۔ وہ اس کے کلیسا کے اندر گھس گیا اور اس نے وہاں ایسی بے ادبی کی کہ ابرہہ کا دل دماغ گھوم گیا۔ بعض روایت میں ہے کہ اس نے چرچ کو نجاست سے آلود کیا، کچھ کے مطابق دیواروں کو نقصان پہنچایا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابرہہ کے لیے یہ صرف چرچ کی بے ادبی نہیں تھی، یہ اس کے غرور پر حملہ تھا۔ وہ دھاڑا اور چلا اٹھا، اگر عرب خانہ کعبہ کو عبادت کا مرکز سمجھتے ہیں تو میں ان کی اسی مرکز کو مٹا دوں گا، میں کعبہ کو زمین سے ختم کر کے چھوڑوں گا۔ یہ اعلان صرف غصے میں نہیں تھا، یہ فیصلہ تھا اس کے خطرناک پاگل پن میں ڈوبے ہوئے فیصلے۔ ابرہہ نے اپنا لشکر جمع کیا، ہزاروں سپاہی، تلوار بردار، نیزہ بردار، تیر انداز، زرہ بختر پہنے ہوئے گھڑ سوار۔ مگر اس فوج کی اصل شخصیت تھے ہاتھی۔ عرب نے کبھی جنگی ہاتھی نہیں دیکھے تھے، اور ان کا سب سے بڑا ہاتھی تھا، اس کا نام تھا محمود۔ محمود ایک دیو ہیکل جانور جو پہاڑ جیسا لگتا تھا۔ ابرہہ کا ماننا تھا کہ محمود کے ایک قدم سے خانہ کعبہ کی دیواریں لرز جائیں گی۔ یہ فوج صنعاء یمن سے مکہ کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے میں عرب قبائل نے لڑنے کی کوشش کی، مگر ہاتھیوں کے سامنے ان کا کوئی وار نہیں چلتا تھا۔ جو مزاحمت کرتا کچل دیا جاتا۔ فوج آگے بڑھتی رہی یہاں تک کہ مکہ کے قریب وادی محصر تک آ پہنچی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں تقدیر ابرہہ کے غرور سے ٹکرانے والی تھی۔ ابرہہ کے غلاموں نے چراگاہوں میں چرتے ہوئے مکہ والوں کے کچھ اونٹ قبضے میں لے لیے تاکہ قریش پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ ان اونٹوں میں سے 200 اونٹ حضرت عبدالمطلب کے تھے، جو مکہ کے سردار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ جب حضرت عبدالمطلب کو پتہ چلا کہ ابرہہ ان سے ملاقات چاہتا ہے، وہ بے خوف ہو کر اس کے خیمے کی طرف چل پڑے۔ ابرہہ نے جیسے ہی عبدالمطلب کو دیکھا، اس کے دل میں عجیب سی حیرت محسوس ہوئی۔ یہ بے تاج بادشاہ، یہ عرب کا سردار عبدالمطلب، اس کی شخصیت میں ایسا روب تھا کہ ابرہہ احترام کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ابرہہ نے سوچا کہ عبدالمطلب اپنی مقدس عبادت گاہ کو بچانے کی درخواست کریں گے۔ عبدالمطلب نے وہ بات کی جس نے ابرہہ کو حیران کر دیا۔ انہوں نے کہا، میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں،
अब्राह ने तंजिया कहका लगाया और चिल्ला कर बोला, जैसे तुम्हारी शक्ल से तुम अक्लमंद नजर आ रहे थे, इतने तुम लगते नहीं हो। तुम्हारी बातें तो बेवकूफ़ों वाली हैं। मैं तुम्हारे काबे को उठाने आया हूं और तुम अपने ऊँटों की फिक्र कर रहे हो। अब्दुल मुत्तलिब ने पुरवकार लहजे में बड़े धीमे से जवाब दिया, ऊँट मेरा है और मैं इसका मालिक हूं, इसकी जिम्मेदारी भी मेरी है। लेकिन जिस घर की बात तुम कर रहे हो, यानी खाना काबा, वो अल्लाह का घर है और अल्लाह ही उसका मालिक है और उसकी हिफाजत भी वो खुद ही करेगा। अब्राह को ये बात मजाक लगी। वो मुस्कुराया और कहने लगा, कल सुबह मैं काबा गिरा दूंगा, फिर तुम देख लेना तुम्हारा रब उसकी हिफाजत के लिए आता है कि नहीं आता। अब्दुल मुत्तलिब वापस आ गए और कुरैश से कहा कि मक्का छोड़ दो, पहाड़ों में पनाह ले लो, क्योंकि अब्राह रुकने वाला नहीं है। फिर वो तन्हा खाना काबा के पास गए, उसके दरवाजे की अंगूठी पकड़ी और इल्तजा की, ऐ मालिक काबा, ऐ रब्बे काबा, ये तेरा घर है, हम कमज़ोर हैं, तू ही हिफाजत फरमा, क्योंकि तू तो बड़ा ताकतवर है। ये दुआ करके वो पहाड़ों पर चले गए। अब मक्का शहर पूरा खाली था, खाना काबा भी खामोश था और अब्राहा का लश्कर हमले के लिए तैयार था। रात की तारीकी खत्म हुई, सुबह की किरणें नमूदार हुईं। अब्राहा ने हुक्म दिया, हाथियों को आगे बढ़ाओ। लेकिन अजीब बात यह हुई कि कुरैश के किसी आदमी ने बड़े हाथी जिसका नाम महमूद था, उसके कान में आकर ये बात कह दी कि जिस घर की तरफ तुम तबाह करने के लिए बढ़ रहे हो, वो घर आसमानों के रब का है, यानी अल्लाह ताला का घर है। ये बात उसके कान में करनी थी कि हाथी जो है वो आगे चलने का नाम नहीं ले रहे थे। हाथियों ने काबा की सम्मत एक कदम भी ना उठाया। इन्हें मारा गया, धकेला गया, पैरों में नेज़े चबोए गए, मगर हाथी ज़मीन पर जमे रहे, जैसे कोई ताकत इन्हें रोक रही हो। महमूद सबसे बड़ा हाथी तो ज़मीन पर बैठ गया, ना उठता था ना चलता था, क्योंकि उसको पता चल गया था कि मैं गलत सम्मत पे जा रहा हूँ। लेकिन जब इन्हें किसी और सम्मत मोड़ा जाता, उनका रुख मशरिक की तरफ किया गया तो वो दौड़ने लगे, उनका शुमाल की तरफ किया गया तो भी दौड़ने लगे, उनका रुख जनूब की तरफ किया गया तो फिर हाथी दौड़ने लगे। लेकिन जब उनका रुख मगरिब की तरफ यानी खाना काबा की तरफ किया गया तो दोबारा हाथी बैठ गए। ये एक वाज़ेह पैगाम था कि ये मामला इंसानों की ताकत से बाहर है। लेकिन अब्राहा चूंकि गरूर में आके पागल हो चुका था, वो किसी इशारे को ना समझ सका। अब्राहा आग बगोला हो चुका था। उसने गुस्से से चीख कर कहा, इन हाथियों को आगे बढ़ाओ, काबा गिरा दो। मगर उसके हुक्म का कोई असर ना हुआ। इसी लम्हे आसमान पर एक अजीब सी तब्दीली आई। हवा की रफ्तार बदली, जैसे पूरा माहौल रुक गया हो। फिर आसमान पर दूर से बादलों जैसा एक स्याह साया नजर आया। अजीबो गरीब आवाजें सनसनाहट आई। लश्कर ने सोचा शायद कोई आंधी या तूफान आ रहा है, लेकिन आंधी नहीं थी, ये तो कुदरत का अजाब था। ये साया कोई आम साया नहीं था, ये वो साया था जो करीब आ रहा था। और अचानक फौज ने देखा कि ये बादल नहीं है, परिंदे थे, हजारों नहीं लाखों, पर बाजू सफ़े, जैसे आसमान से उतरी हुई कोई मुनज़्ज़म फौज जो दुश्मन पे हमला करने के लिए आ रही हो। कुरान ने जिन्हें तैरन अबाबील कहा, ये वही छोटे परिंदे थे जो अल्लाह की फौज थे। हर परिंदे की चोंच में एक पत्थर था और पंजों में 2 पत्थर था, यानी कि एक परिंदा टोटल 3 पत्थर उठा के, पत्थर भी नहीं, कंकर थे वो, छोटे छोटे कंकर। ये पत्थर आम कंकर ना थे, ये ऐसे आग जैसे अजाब थे जिनमें इलाही कुदरत इलाही भरी हुई थी। फिर हमला शुरू हुआ।
परिंदों ने ऊपर से झपट कर जहर भरी बारिश की। हर पत्थर जिस सिपाही पर गिरता इसका जिस्म छलनी कर देता। इंसान तड़प तड़प कर गिरते, फौज चीखते हुए भागती, हाथी दीवाने हो गए। अबरहा की फौज लम्हों में जमीन पर बिखर गई। कहते हैं कि ये कंकर जब किसी हाथी की जिस्म पर गिरता था, किसी बम की तरह फटता था और हाथी के रेजे रेजे हो जाते थे। पत्थर गोश्त और हड्डियों को काटते हुए आर पार निकल जाते और सिपाही खड़े खड़े तबाह हो जाते। कुछ लोग तो इसको आजकल के एटम बम के मुशाबे भी करार देते हैं कि ये जो कंकर थे वो अल्लाह ताला की तरफ से एटम बम थे, क्योंकि उनकी तमाम खसूसियात जो थीं वो ऐसी ही थीं जैसे कि आजकल के एटम बम में पाई जाती हैं। फौज का कोई हिस्सा, कोई गिरोह, कोई हाथी, किसी को बच निकलने की मोहलत ना मिली, क्योंकि ये तो खुदा का अजाब था। अबरहा के मुकाबले में कोई आम फौज नहीं थी, ये आसमानी फौज आई थी। अबरहा खुद भी भागा, लेकिन इसका जिस्म रास्ते में टूटता चला गया। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये एटम बम थे एक किस्म के, तो एटम बम में यही होता है कि जब इंसान रेडिएशन का शिकार होता है तो उसका जिस्म टूट फूट का शिकार हो जाता है और वक्त के साथ साथ गलना सड़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसा ही अबरहा के साथ भी हुआ। वो भागता जा रहा था और उसका जिस्म गल सड़ के नीचे गिरता जा रहा था। कुछ रिवायत के मुताबिक इसके जिस्म पर फोड़े उठाए, फिर वो फटने लगे और आखिरकार वो रास्ते ही में मर गया। इसका गरूर, इसकी ताकत, इसकी मंसूबाबंदी, हर चीज खाक में मिल गई। ये सब कुछ खत्म हुआ तो मक्का के पहाड़ों पर छिपे हुए लोग नीचे उतरे। जब उन्होंने अबरहा की तबाही का मंजर देखा, खुशी से नीचे उतरे। उन्होंने देखा कि खाना काबा वैसा ही खड़ा है, महफूज, सलामत, एक पत्थर तक अपनी जगह से नहीं हिला। लेकिन अबरहा की फौज का नामो निशान मिट चुका था, क्योंकि ये अल्लाह का फैसला था, ये अल्लाह का घर था और अल्लाह ही इसकी हिफाजत फरमा रहे थे। फिर अरब ने समझ लिया कि ये घर इंसानों का बनाया हुआ तो है, मगर इसका मालिक अल्लाह है, और जब अल्लाह हिफाजत करता है तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी इसके मुकाबले में रेत का जर्रा बन जाती है। ये वाकया सिर्फ तारीख नहीं है, ये अल्लाह की कुदरत का ऐसा ऐलान है जो आज भी हमारे दिलों को झंझोड़ देता है। ये हमें बताता है कि गरूर इंसान को मिटा देता है और अल्लाह के फैसले के आगे कोई चीज़ नहीं चलती। अस्हाब फील का ये वाकया हमेशा ये सबक देता रहेगा कि जब अल्लाह चाहे कमज़ोर को ताकत दे दे और जब चाहे ताकत को मट्टी में मिला दे। अबरहा आया था खाना काबा को गिराने, मगर अल्लाह ने इसका नाम मिटा दिया और अपने घर की अजमत को हमेशा के लिए बुलंद कर दिया। और इसी साल इसी सरजमीन पर वो हस्ती दुनिया में तशरीफ़ लाईं जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल देना था। वो हस्ती थी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दोस्तों, इस तरह की अच्छी और मुफीद इस्लामी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको देख सकें लोग। तो इंशाल्लाह हम इस तरह की मज़ीद मुफीद वीडियोस लाते रहेंगे। तो आप हमारे साथ तावन करें ताकि हमें हौसला अफजाई हो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको मुहैया हो सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।